can present my screen. Okay, student. So today we are discuss what is the difference between SDI and MDI form. SDI means single document interface, right? Your mobile application means when you open the calc, right? It is a single document interface. This is the single document interface. This is the notepad is again a single document interface. That type of application we can develop, we can use single document interface, SDI, right? And what is MDI? MDI means multi document interface. Multi document interface, right? So this is the multi document interface. Multi document interface example is like when you open a Word, right? For example, I can open Word application or Excel application. In that application we can contain many window, right? For example, this is the single document interface, and here is the Excel, right? This is the Excel, right? So Excel contain different type of this is the another window. Okay. This is the window based application. It is not a single document interface, right? So, and one more example, Visual Studio 2009 itself, it is an example of an multi document interface, because every document are different or movable or floating, right? That's why it is called multi document interface. Okay, don't save. So this type application we have to develop. We can use MDI, we can use SDI. So SDI application having a certain menu, right? Menu, application bar, menu bar, status bar, scroll bar, that type of control are available in that control, right? Form control. It is a part of form, single document interface and multi document interface. How to create this and how to build this type of form? So first of all, we can open Visual Studio, right? And inside the Visual Studio, we can build single document interface and multi document interface. So how to convert single document form into multi document form? So today we are discuss one more control. Its name is a menu strip control. Menu strip control is used for creating menu. Like every application having a menu, single document or MDI uh, form having a menu. So how to put menu in your project, in your software? So that for that purpose we can use SDI or MDI. Now, first of all, I can take as one form. Its name is window form, right? One normal window form. So then that normal window form is called SDI. Then SDI, how to convert SDI into a MDI? Okay, this is an example of FRM MDI demo, right? Its form name is MDI demo. Student Sadiq Rain, hello, visible? Sadiq Rain, Sadiq Rain, is it visible?
Unnati Mistry. Yes, sir. Okay, very good. Okay. In last lecture, we have seen this type of application. Okay. Designer cannot be so because the document for it was never load. Okay. I can take again one more form. Okay, form number 7. Okay, form number 7, right? This is the form number 7. And here, first of all, go to property and name uh, software like a school management system. School management system, right? So school management system having certain menu, right? First, I can drag and drop manuscript control. uh, Manuscript control, this is the manuscript control, right? Inside this manuscript control you can click on this arrow icon, edit menu, right? Edit menu, you can add menu like first data entry, data data entry, right? Inside the data entry, right, you can drop down item name is add data entry student student master, right? Okay, then I can add again course master, right? Okay, this one course master. See here, course master, right? Okay, course master. Okay, now I can run form number 7. Okay, we have to change the form 7. Okay, ઉન્નતિ દેખાય છે? Yes, sir. જો અહીંયા તમે ડેટા એન્ટ્રી મૂક્યું હતું સ્ટુડન્ટ, રાઈટ, કોર્સ. ઓકે, સાદી ક્રેન, યસ, ડેટા એન્ટ્રી સ્ટુડન્ટ માસ્ટર એન્ડ કોર્સ માસ્ટર, રાઈટ? ખ્યાલ આવે છે ને? મેનુ આપણું એડ થયું, રાઈટ? સાદિક, okay. Now I want to add one more menu
right? So click on here and add report menu, report, right? Okay, now click here, we can create report. Now edit item and go to report menu, and again inside the report menu we can create student wise student name wise report, right? Okay, now inside the report student wise report, and add one more surname wise report. Okay, okay, now we need to add one separator, right? Here we can use separator, right? Okay, this is the separator, and this last one is course wise report. Course wise report. ઓકે, વચ્ચે આપણે એક સેપરેટર મૂક્યું છે, દેખાય છે? હવે હું રન કરું છું. આજે તમને શીખું છું કે સોફ્ટવેર કઈ રીતના બનશે જેમાં મેનુ આવશે. ઓકે, જો અહીંયા રિપોર્ટ બની ગયું, સ્ટુડન્ટ નેમ વાઇઝ રિપોર્ટ, સરનેમ વાઇઝ રિપોર્ટ એન્ડ કોર્સ વાઇઝ રિપોર્ટ. સાડી ખ્યાલ આવે છે? શું કેવું? આટલામાં કોઈને કન્ફ્યુઝન હોય તો નથી. હેલો, શું કે? અવાજ નથી આવતો તારો. હેલો, હા આપણે સેપરેટર મૂક્યું ને હા, એનાથી શું થયું? એનાથી આ લાઈન આવી, આ સેપરેટર લાઈન, સેપરેટર મૂકવાથી આ એક લાઈન પ્રિન્ટ થઈ, દેખાય છે? ઓકે સર, હા સર. સેપરેટ કરી આપ્યું કે સ્ટુડન્ટના રિપોર્ટ સ્ટુડન્ટમાં જ હશે, કોર્સના રિપોર્ટ તો એની નીચે હશે, રાઈટ? આ રીતના ઓકે અને કોર્સ વધશે, રાઈટ? તો આ એક વસ્તુ થયું. હવે આની ઉપર હું આનો એક ફોર્મ બનાવીશ જે અહીંયા ઓપન થવું જોઈએ, કોર્સનું ફોર્મ બનાવીશ તો કોર્સનું અહીંયા ઓપન થવું જોઈએ. આપણે ખાલી એક સિસ્ટમ બનાવતા, એક સોફ્ટવેર બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. હવે મેં આજે તમને મેનુ કંટ્રોલ સમજાવું છું. ઓકે, હવે હું એ બે ફોર્મ બનાવીશ, એક સ્ટુડન્ટ માસ્ટર ને એક બીજું ફોર્મ બનાવીશ, એડ કરીશ, બીજું એક ફોર્મ એડ કરીશ જેનું નામ રહેશે FRM સ્ટુડન્ટ मास्टर. ओके, स्टूडेंट मास्टर, एक स्टूडेंट मास्टर फॉर्म આવ્યું. એની ऊपर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर एक लेबल ले लेंगे, ये राइट? लेबल के अंदर टाइप करेंगे स्टूडेंट 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 मास्टर, राइट? स्टूडेंट मास्टर. ओके, this form is for student master. ओके, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक और एक फॉर्म ले लेते हैं, उसका नाम है FRM कोर्स मास्टर, राइट? कोर्स मास्टर, राइट? कोर्स मास्टर. और अगेन उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे कोर्स मास्टर, राइट? कोर्स मास्टर. ओके, कोर्स मास्टर आ गया. दो फॉर्म है हमारे पास. मुझे ये दोनों फॉर्म, राइट, ये विंडो MDI के अंदर मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस उसके अंदर चाहिए, राइट? उसके अंदर हम लोग यूज करेंगे. तो देखो यहाँ पे हम एक ऐड कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सब ऐड हो जाता है. कंट्रोल Z करने से वो निकल भी जाएगा. यहाँ पे देखो ये सब ऑटोमेटिक क्रिएट होता है. हेल्प वाला रखते हैं, बाकी का निकाल लेते हैं, राइट? ओके, एक हेल्प मेनू आ गया, रिपोर्ट आया और
डेटा एंट्री हो। ओके, और यहाँ पे देखो ग्रिप है, विजिबल है, डॉक है, टॉप पे चाहिए, ये इधर भी मैं मेनू रख सकता हूँ, राइट। ये मेनू मेरे सब यहाँ पे आ गए, राइट। नया अभी सॉफ्टवेयर की नई स्टाइल भी है, बॉटम से भी ओपन करवा सकते हो, राइट। डॉकेट है, इसको डॉकेट बोला जाता है, साइड से भी मेनू ओपन हो सकते हैं, राइट। अभी जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन अभी साइड से ओपन हो रही है, राइट। तो ये सब आप मैनेज कर सकते हो। मुझे टॉप से चाहिए तो टॉप से भी आप ओपन कर सकते हो, राइट। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बहुत ही एडवांटेज है कि मेनू कहाँ से स्टार्ट करना है, नन करते हैं तो निकल जाएगा, राइट। ओके, अभी मुझे क्या करना है, ये जो मेनू है उसके ऊपर कोडिंग करना है। इसकी इवेंट पे जाना है, प्रॉपर्टी में, और उसके अंदर जो मेनू है यहाँ पे, राइट। ये मेनू जो हमारा क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर हमने कौन सा मेनू लिया है, डेटा एंट्री। और डेटा एंट्री के अंदर वापस अगेन आप उसके अंदर जाना है तो कैसे जाओगे, कलेक्शन में जाओगे। कलेक्शन में कौन सा है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मास्टर के ऊपर कोडिंग करना है मुझे, स्टूडेंट मास्टर के ऊपर कोडिंग करना है। तो कैसे करोगे, राइट, स्टूडेंट मास्टर के ऊपर कोडिंग करना है। तो अभी क्या करना है, इसका नाम क्या है स्टूडेंट मास्टर के अंदर, ये जो है पहला हेल्प मेनू, उसके अंदर अगेन आप जाओगे, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, टूल स्ट्रिप मेनू आइटम 2। तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो, देखो नेम प्रॉपर्टी टूल स्ट्रिप, राइट, मेनू स्टूडेंट मास्टर, राइट। ये मैंने ऐसे मेनू बना दिया, राइट। तो यहाँ पे मेनू मेनू कोर्स मास्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेम प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे भी आप मास्टर, राइट, ये डेटा एंट्री मेनू लिखो आगे और डेटा एंट्री लिख दो, डेटा एंट्री। यानी आप ये क्या हुआ, जो जो मेनू है उसका नाम, राइट। ओके, यहाँ पे जो है क्या रहेगा, रिपोर्ट मेनू, और उसके बाद लिखो रिपोर्ट। तो आपका ये रिपोर्ट वाला कंप्लीट हो गया, राइट। और ये हेल्प का तो ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, अभी हम इसके ऊपर कोडिंग करते हैं, व्यू कोड पे चले जाते हैं। तो व्यू कोड के अंदर हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे मेनू, राइट। यहाँ पे मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे किसके ऊपर क्लिक करूँ, इसके ऊपर एक मेथड बन गई। देखो मेथड कैसे बनती है, राइट। तो उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है, तो वो क्या होना चाहिए, फॉर्म ओपन होना चाहिए, बीम एफ एस न्यू, कौन सा फॉर्म ओपन होना चाहिए, एफ आर एम स्टूडेंट मास्टर, राइट। एंटर एफ डॉट शो, शो एक मेथड है, राइट। और सेम कोड जो है कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मेनू कोर्स मास्टर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक इवेंट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक क्लिक इवेंट बन गई। ओके, यहाँ पे इसको निकाल देना है और लिखो एफ आर एम कोर्स अंडरस्कोर कोर्स मास्टर, राइट। तो ये दो फॉर्म हमारे हो गए। हम जब रन करेंगे एप्लीकेशन तो वहां पे क्लिक करेंगे तो दो फॉर्म ओपन होने चाहिए। सादिक, हेलो, हेलो उन्नति मिस्त्री, Yes, sir. इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारा स्टूडेंट फॉर्म आया, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो कोर्स मास्टर आया, राइट। दो दो फॉर्म यहाँ पे है, राइट। लेकिन ये फॉर्म क्या है, दो ओवरलैप हो रहे हैं, और इसको मैं मिनिमाइज करूं तो ये तो ओपन ही रहेंगे, राइट। तो इसका मतलब कि ये कोडिंग जो मैंने किया वो एमडीआई फॉर्म में नहीं है, ये दोनों फॉर्म एमडीआई नहीं है। तो मुझे एमडीआई में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, राइट। ये दोनों फॉर्म एमडीआई के अंदर नहीं है। जब मैं पूरी एप्लीकेशन क्लोज करूं तो पूरा क्लोज होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से मुझे क्रिएट करना है एमडीआई फॉर्म। ओके, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एमडीआई बनाना पड़ेगा। तो एमडीआई बनाने के लिए दो प्रॉपर्टी चाहिए आपको, राइट। यहाँ पे लिखो, एक एक लाइन लिखोगे तो आपका फॉर्म जो है वो एमडीआई में कन्वर्ट हो जाएगा, एमडीआई पेरेंट,
यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एमडीआई पेरेंट इज इक्वल टू मी, राइट, मी, ओके डन। तो यहाँ पे लिखो, एक एक लाइन ऐड करने से आपका काम, एमडीआई पेरेंट इज इक्वल टू मी, ये हो गया। और ये जो फॉर्म है आपका मेन फॉर्म 7 नंबर का, उसके अंदर जाना है और एक चीज इज एमडीआई करके एक प्रॉपर्टी होगी, वो ट्रू कर देना है। इज एमडीआई कंटेनर, यस, ये ट्रू कर दो तो आपका फॉर्म एमडीआई में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, ओके। अभी ट्राई करो कि क्या है हो रहा है, ओके ओके, वहां से मैं निकाल देता हूँ कंटेनर 7 नंबर, ओके। ये आपका मेन फॉर्म जो है स्कूल मैनेजमेंट वाला, वहाँ पे क्लिक करो। इसको हमने क्या किया था, इज एमडीआई कंटेनर, लेकिन ऑलरेडी हमने वहाँ पे वो काम किया है, तो इसको एमडीआई कंटेनर फॉल्स ही रहने दो, एमडीआई कंटेनर फॉल्स, यहाँ पे स्टूडेंट form that was specified to be the parent is not an MDI container value, okay। प्रॉपर्टी में जाओ, इज एमडीआई कंटेनर, ओके। अभी चेंज हो गया, देखो थोड़ा चेंज हो गया, इज एमडीआई कंटेनर ट्रू किया, वो भूल से की प्रेस वाला, की प्रीव्यू वाला क्लिक हो गया था, अभी करेक्ट हुआ। और ये जब होता है हमें उसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज कर देते, जैसे फॉर्म ओपन होता है तो ऑटोमेटिकली वो मैक्सिमाइज हो जाना चाहिए, राइट। समझ में आ रहा है ना उन्नति, हेलो, Yes, sir. सारिक, हाँ सर। ओके, तरुण गुप्ता, जेनिस हाँ लाल, सर। जेनिस लाल, ओके। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं कवर कर रहा हूँ, यस। ये आपकी एक सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो ये आपके अंदर आ गया, देखो ये इसके अंदर ही रहेगा, देखो ऑटोमेटिक, उसके बाहर भी नहीं चाहेगा। पहले क्या था, हमने कंटेनर को बाहर फॉर्म था, राइट, और दूसरा भी क्लिक करोगे उसके अंदर। अभी मिनिमाइज करते हैं तो सब कुछ मिनिमाइज हो जाना चाहिए, हो गया सब कुछ मिनिमाइज, राइट। तो ये आपका एक टॉपिक एमडीआई का मैंने कवर किया, और साथ में मैनो स्ट्रिप कंट्रोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। और मुझे यहाँ पे एक बैकग्राउंड बनाना है, कुछ एक बैकग्राउंड के स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो पावर पॉइंट में मैं जाऊंगा, यहाँ पे एक इमेज में क्रिएट करूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक इमेज है, वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ले लेता हूँ, राइट, इसके बैकग्राउंड में, ओके। मैं ये स्टॉप करूँ और यहाँ पे कोई इमेज बैकग्राउंड में ले लेता हूँ, पीएनजी इमेज होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके। राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, उसके अंदर इमेज कैसे रखना है, फॉर्म बैकग्राउंड, फॉर्म बैकग्राउंड में जाओ, यहाँ पे उसके अंदर कोई इमेज ले लो, इंपोर्ट कराओ। माय प्रोजेक्ट के अंदर कोई इमेज में मेरे पास कोई टेम्पररी इमेज है तो वो मैं ले लेता हूँ, राइट। माय वर्क में एक इमेज है मेरे पास, बनाना लोगो, राइट, ओके ओके ओके। एक लोगो मैंने लिया बैकग्राउंड में, उसको मुझे क्या करना है, स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच, ओके। अभी मैं रन कर रहा हूँ तो बैक साइड पे क्या आना चाहिए, लोगो आना चाहिए, ओके। लोगो आ गया, परफेक्ट, ये ऐसे कंपनी का नाम आ गया, राइट, और लोगो आ गया। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, एक सॉफ्टवेयर मैंने रेडी कर दिया आपके सामने, ओके। यहाँ पे स्टूडेंट, राइट, और ये स्टूडेंट के अंदर हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, स्टूडेंट मास्टर का डेटा यहाँ से डालते हैं। देखना कभी लाइब्रेरी में जाओ तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सिस्टम आता है, वो भी ऐसे ही होता है, राइट। तो ये आपका एक सॉफ्टवेयर रेडी हो गया, इतना आपको डेवलप करना है। ये आपका कॉन्सेप्ट था सिंगल डॉक्यूमेंट और मल्टी डॉक्यूमेंट।
ये खुद ही एक सिंगल डॉक्यूमेंट, मैंने कैलकुलेटर वाला जो डेमो बताया था वो सिंगल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज करोगे, यहाँ पे हेल्प भी होगी, राइट। इंडेक्स वाइज सर्च अबाउट, आपके प्रोजेक्ट में अबाउट अस रखो, राइट। कंटेंट वाइज सर्च करो, इंडेक्स वाइज सर्च करो, ओनली सर्च करो, ये ऑटोमेटिक ये मेनू दे देता है, राइट। उसके पेज आपको लिंक करना पड़ेगा यहाँ से, मैंने सिर्फ 2 लिंक करके बताया। वो लिंक करने के लिए कौन सा कोडिंग किया मैंने, राइट। यहाँ पे मैं कोडिंग कौन सा किया, फॉर्म के अंदर उसके ऊपर राइट क्लिक करो, व्यू कोड पे करो, अदरवाइज F7 ये नोटबुक में लिख लेना, राइट। ओके, तो ये मैंने आज डेमो आपको बताया SDI और MDI का डिफरेंट विथ मेनू कंट्रोल, राइट। मेनू कंट्रोल कैसे बनता है, ओके। और उसके ऊपर एक और कंट्रोल मुझे लेना है, एक और मैं मेनू कंट्रोल लूं तो उससे क्या होता है, कंटेक्स्ट मेनू स्ट्रिप बन जाएगा। एक राइट क्लिक करके जो पॉपअप मेनू बनाते हैं ना, वो कैसे डेवलप करते हैं वो मैं आपको अभी, राइट। इसके ऊपर मैं और एक मेनू स्ट्रिप यूज करूं, कंटेक्स्ट मेनू स्ट्रिप, राइट। कंटेक्स्ट मेनू स्ट्रिप्स पे क्या होगा, यहाँ पे एक लिखो, राइट। ओके, कंटेक्स्ट मेनू स्ट्रिप में क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, प्रॉपर्टी में जाओ, उसके अंदर एक पहले लिखो, ऐड करो स्टूडेंट, कौन सा लिखता हूँ, स्टूडेंट मास्टर, ओके। एक स्टूडेंट मास्टर, जब हम राइट क्लिक करेंगे तब स्टूडेंट मास्टर होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट मेनू, राइट। स्टूडेंट, थोड़ा वर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, राइट। नेमिंग कन्वेंशन में सी आगे ऐड करना पड़ेगा, राइट। ओके, और एक मेनू ऐड करो, उसके अंदर उसका नाम रखो, नाम क्या आएगा, कोर्स, ओके। कोर्स मास्टर, कोर्स मास्टर, ओके। और उसकी जो प्रॉपर्टी है नेम प्रॉपर्टी, मैं बेसिकली 2 प्रॉपर्टी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, नेम और टेक्स्ट प्रॉपर्टी, राइट। कोर्स मास्टर, ओके, डन। ओके, अभी इसका कैसे सिनेरियो बनेगा वो हम देखते हैं, राइट। हम कोडिंग में जाते हैं, कोडिंग में सेम कोड यूज करते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे सी मेनू, राइट। उसकी क्लिक इवेंट क्या होगा, क्लिक इवेंट सेम कोडिंग होगा, क्लिक पे जो मैंने लिखा है, राइट, स्टूडेंट, ओके। कॉपी, यहाँ पे मैं कॉपी, और यहाँ से सी स्टूडेंट ऑफ किया मैंने, सी क्या होगा, सी मेनू कोर्स, राइट। ओके, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपके अंदर भी ये कोडिंग हो जाएगा, और यहाँ पे जाओ, ये तीनों लाइन कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो आपका राइट क्लिक करोगे तो पॉपअप मेनू ओपन होगा। देखो ये उसका प्रोजेक्ट मैंने आपको बनाया, 2 तरह के मेनू आते हैं, राइट। आपके कोई भी विंडोज एप्लीकेशन बनाओगे आप, राइट, या कुछ भी एप्लीकेशन बनाओगे, राइट, तो 2 तरह के मेनू होंगे, एक राइट क्लिक करोगे, राइट। अभी देखो यहाँ पे राइट क्लिक पे आ नहीं रहा, मेनू आ नहीं रहा मेरा, यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ किसी जगह पे, लेकिन मेनू आ नहीं रहा। तो इसके लिए जो भी मैंने कंटेक्स्ट मेनू लिया है उसका रेफरेंस मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, राइट। ये जो उसके प्रॉपर्टी में जाना है, राइट। कंटेक्स्ट मेनू का रेफरेंस मैंने एक और कंट्रोल लिया है, आज मैंने 2 कंट्रोल आपको पढ़ाए और 2 एप्लीकेशन, राइट। यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाना है और कंटेक्स्ट मेनू का रेफरेंस देना है। कंटेक्स्ट मेनू का रेफरेंस कैसे दोगे, ये कंटेक्स्ट मेनू में जाना है, यहाँ पे आपका कंटेक्स्ट मेनू नन है अभी, इसीलिए राइट क्लिक कर रहे हैं तो आ नहीं रहा है। कंटेक्स्ट मेनू स्ट्रिप पे क्लिक करोगे तो आपका रेफरेंस दे दिया यहाँ पे, ये रेफरेंस कौन से फॉर्म में दिया, फॉर्म नंबर 7 MDI फॉर्म में दिया, मेन फॉर्म स्कूल मैनेजमेंट वाले पे, राइट। तो यहाँ पे मैंने कंटेक्स्ट मेनू लिया, देखो कंटेक्स्ट मेनू यहाँ पे दिख भी रहा हमारा। यहाँ पे जाओगे, ये कंट्रोल पे प्रॉपर्टी में जाओगे तो प्रॉपर्टी आप कंटेक्स्ट मेनू का है, ये प्रॉपर्टी है, ये कंट्रोल है, उसकी प्रॉपर्टी मेनू स्ट्रिप कंट्रोल है, दोनों कंट्रोल अलग अलग है, राइट। ये जो मेनू स्ट्रिप कंट्रोल है ये आपको विजिबल फॉर्म में दिखेगा, ये कॉन्टेक्स्ट मेनू है, जब आप राइट क्लिक करोगे कोई भी कंट्रोल पे, जो भी रेफरेंस दिया है वो कंट्रोल पे आप राइट क्लिक करोगे तभी ये परफॉर्म होगा। अभी मैं आपको वापस रन करके दिखाता हूँ, राइट, के पॉपअप मेनू कैसे यूज होता है। देखो ये पहले मैंने स्टूडेंट यहाँ से क्लिक किया, उसको मैंने बंद कर दिया,
राइट। वापस मैं राइट क्लिक करूं तो देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो नहीं आएगा, ये दूसरा मेनू आ रहा है, राइट। मैंने कंटेक्स्ट मेनू यहाँ पे ही रखा है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? हेलो हेलो हाँ सर। हेलो सादिक, जिनल, सुरती, हाँ सर। मिस्त्री, राइट। Yes, sir. ओके कंटेक्स्ट मेनू में समझ में आया सादिक? यस सर। ओके ओके, यहाँ पे हम कोर्स को क्लिक करते तो कोर्स मास्टर भी ओपन हो रहा है। ओके यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट मास्टर भी, यहाँ से भी हम डेटा एंट्री का फॉर्म ओपन कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि एमडीआई फॉर्म क्या है, एसडीआई फॉर्म क्या है, और उसके अंदर मैन्युस्क्रिप्ट कैसे यूज करना है और कंटेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट कैसे यूज करना है। ओके कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ओके सादिक, कोई कंफ्यूजन है? स्टॉप रैक